Hello everyone, welcome to the fourth video in the series where we are discussing agriculture optional paper of 2020. Now, in this section we will discuss the social sciences part, economics and extension. Okay, first we will discuss extension. So if you can see the distribution of marks or the weightage, 40, 55 marks are allotted to extension. And if you see the questions are fairly direct. Okay, so if you see the first question, what are the institutional arrangements and mechanisms for imparting training for extension workers in India? Okay, so it is a very straightforward questions. There are specific institutional setups for training of extension workers. There are certain programs which are devised for the training. Like if you see the institutions which are involved, so extension education institutes, right? Then we have Directorate of Extension, which formulates particular training programs. Then we have Samitis, state level institutes, state agriculture management and extension training institutes at state level, which trains the extension workers. Then extension education institutes at regional level. There are 5 institutes: Hyderabad, Nilokhari in Haryana, Anand in Gujarat, Johrat in Assam. Okay, there are 4. Okay, now these institutes are for mid-level extension workers, training institutes for mid-level extension workers. Then we have Krishi Vigyan Kendra, which are training the in-service extension workers. Now again, those training programs they depend upon the needs of the people. वो area में क्या cropping pattern है उसके basis में depend करता है. Then we have programs like training and visit system, where we have fortnight trainings. Okay, every 14 days में उनका training होता है. Then they will go and visit depending upon crop season. The training programs vary depending upon the types of crops in the season. Then Directorate of Extension बताया था. Then they will give the model training courses. Okay, they devise the syllabus, और या syllabus बोल सकते हैं, या फिर एक structure किस तरह का course होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. Then state agriculture universities, they also conduct workshops. So there is a particular institutional establishment already in place for training of extension workers. Then second question, differentiate between cooperative societies and NGOs. Okay, so this is a direct question. यहाँ पर differences बताना है. So if you can prepare on your own, ठीक है, वरना मैं differences लिख के आया हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको. Now cooperative society and NGOs or trusts. Okay, so cooperative society is a autonomous institution. Okay, where people voluntarily come together for achieving specific social, economic or different types of goals what they have. Okay, it is owned and democratically controlled enterprise. Then NGOs is a citizen based association that operates independently of government. Okay, that operates independently of government, usually to deliver resources or serve some social or humanitarian purpose. That is NGO or trust. So that is the basic definition. वो क्या है, cooperative society क्या है, और NGO या trust क्या है. Then it is placed under state control to protect the interest of the members, registered members of the society. So ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करते हैं इसको. सो एक स्टैट्यूट गवर्न करता है इसको, एंड इट हैज स्टेट कंट्रोल ओवर इट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स. देन एनजीओस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कमीशन. तो एनजीओस किसके कंट्रोल में? कॉर्पोरेट अफेयर्स कमीशन. नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे हैव टू सबमिट डिटेल्स अबाउट द मेंबर्स एंड क्या बिजनेस कर रहे हैं वो सारा इसको देना है. एनजीओस उनको देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को वो सारा बताने की जरूरत नहीं है. ओके, मेंबर्स कैन ज्वाइन इजीली एंड दे कैन क्या बोलते हैं, they can withdraw their membership easily under
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बट एनजीओस या ट्रस्ट के केस में ये थोड़ा रिजिड है, इजीली आप एंटर नहीं कर सकते और इजीली बाहर भी नहीं जा सकते. देन प्रोसीजर इज डिफरेंट. देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू द मेंबर्स of the society depending upon the contribution of the member, but NGOs में there is no distribution of the profits to the members. Then revenue through sales of goods. अब ये जो voluntary membership है ये किस लिए, क्या profit के लिए या किसी for selling something they have voluntarily established a society. Now the goal of establishment of the society मे बी इकोनॉमिकल पर्पस और सोशल पर्पस, कुछ भी हो सकता है. अगर इकोनॉमिक पर्पस है तो जो भी गुड सेल कर रहे हैं उसका जो प्रॉफिट आ रहा है, ओके, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. देन रेवेन्यू थ्रू सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इनका रेवेन्यू कहां से आता है एनजीओ का? डोनेशंस, मेनली टैक्स डिडक्टेबल डोनेशंस से आता है. देन दे हैव मोर लिमिट्स ऑन एक्टिविटीज, क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो उसके ऊपर लिमिटेशन ज्यादा है. वेयर एज सोसाइटीज दे हैव फ्यूअर लिमिटेशंस, वो सोशल एक्टिविटीज में भी कर सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटी भी कर सकते हैं. सो दीज आर मेन डिफरेंसेस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एनजीओस. ओके, देन 5 मार्क्स का है तो 4 डिफरेंसेस लिख दो, हो जाएगा. डिस्क्राइब ट्रेनिंग मेथड सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स. That is the first part. Explain the contribution of self-help groups in agriculture development in India. Now this is directly mentioned, role of NGOs and self-help group. ये तो डायरेक्ट है, तो इसके ऊपर आपका नोट्स होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन है, व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ पीपल और इंडिया. ऐसे कुछ भी आता है तो उसके लिए एक नोट्स बनाना चाहिए. क्या पॉवर्टी एलिवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, इजीली बैंक से क्रेडिट मिल जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज वाला प्रोग्राम है. देन वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, लिटरेसी इंक्रीज होता है. एग्जाम्पल्स है तो कुडुम्बश्री इन केरला. देन वी हैव लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल दे सकते हो. एंटरप्रेन्योरशिप या कॉटेज इंडस्ट्री को इजीली प्रमोट करता है. ओके, सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग वो भी इम्प्रूव होते हैं. स्टेटस ऑफ वुमेन इज एलिवेटेड इन द सोसाइटी. और फिर वो दे फाइट अगेंस्ट ऑल दीज जो भी है ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत जगह पर जहाँ पर ये ज़्यादा प्रिविलेंट है. सोशल जो एंटी सोशल एक्टिविटीज उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, ये सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो. देन डिस्क्राइब, एक और हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो वाला भी प्रोग्राम का एग्जाम्पल दे सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ही है. Then describe training methods suitable for small and marginal farmers and agricultural laborers. Now, this section, okay, ये एक तरह से बोल सकते हो टारगेट ग्रुप भी है. ओके, फोकस ग्रुप या टारगेट ग्रुप ऑफ एक्सटेंशन एजेंसीज, बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव लीस्ट रिसोर्सेस. ओके, पूरे फार्मर्स को अगर तुम करोगे तो 85 to 90% फार्मर्स they come under small and marginal farmers group and agricultural laborers, यही आते हैं 80 to 85% इसी ग्रुप में आता है. and they don't have enough resources. agricultural laborers जो हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं होता है, लैंड भी नहीं होता है. small and marginal farmers के पास at least they have some land, right? now these people literacy wise भी and information and technology adoption, awareness of information and technology रिगार्डिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड है इनके पास वन कंपेयर टू लार्ज फार्मर्स और प्रोग्रेसिव फार्मर्स उनकी कंपैरिजन में. नाउ टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टेक्नोलॉजी और टू आस्क देम टू यूज दिस हाइब्रिड सीड्स और दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और दिस मेथड टू improve their life, it is very difficult to make them understand or make them adopt the technology. okay, तो डायरेक्टली वो लोग न्यूज़पेपर या फिर ये बहुत कम, लिटरेसी रेट भी कम है ना इनके पास, तो दे डोंट गो थ्रू, मे बी दे लिसन टू द रेडियो. और अभी तो बहुत सारा हो गया, लेकिन बट अगर तुम पहले से देखोगे स्टार्टिंग से जो एग्रीकल्चर का सिनेरियो है स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंस के बाद से, दीज आर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस.
ओके इसीलिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का भी टारगेट ग्रुप यही रहता है, बिकॉज ये लोग ही ज्यादा नंबर में और इनके पास रिसोर्सेज ये सब भी नहीं है, तो इनका लाइफ ये टारगेट ग्रुप है एक्सटेंशन का, राइट। नाउ इन लोगों के लिए कौन से सूटेबल होंगे प्रोग्राम्स? प्राइमरली अगर कम्युनिकेशन पे जाओगे, कम्युनिकेशन मेथड्स विच आर वेरी सूटेबल फॉर दिस फार्मर्स इज इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट बेस्ड मेथड या ग्रुप कॉन्टैक्ट बेस्ड मेथड, जहां पर पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हो। ओके तुम मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का एग्जांपल डाल सकते हो, उसमें रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का डाल दो एग्जांपल। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड वेयर एक्सटेंशन वर्कर गोज टू द फार्म फैमिली, उनके साथ उनके पास बैठ के उनका प्रॉब्लम्स ये सब देख के उनका सॉल्यूशंस, राइट। या फिर फार्मर फील्ड स्कूल वाला भी तुम एग्जांपल दे सकते हो, वेयर एक्सटेंशन एजेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व और ही इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स। सो कम्युनिकेशन इज की in making the farmer to adopt the technology. So especially to these sections, small and marginal farmers and agricultural laborers, communication method जो सबसे ज़्यादा effective हो individual contact method या group contact method. mass communication methods ज़्यादा वो इतना easy नहीं है, because they are like most of them are क्या बोलते हैं late adopters, okay. वो लोग skeptical रहते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आता है जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, मे बी because they are not familiar with the technology, or maybe because they have less risk bearing capacity, or maybe they don't have resources. Reasons can be many, okay. So social reasons भी हो सकते हैं, maybe because socially they are backward, along economic backward तो है ही, क्योंकि उनके पास resources नहीं है। socially caste wise ये सारी चीज़ें भी हैं, technology adoption में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। so there can be several reasons. The most effective way is the most effective way of communication is either by individual contact method or by group contact method. And बहुत सारे programs भी शुरू किया है, जैसे लैब टू लैंड प्रोग्राम है। लैब टू लैंड प्रोग्राम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 1979 में स्टार्ट किया था, ऑन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ ICR। उसमें भी क्या है, मेनली फोकस ग्रुप जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, यही फोकस ग्रुप है उनका भी, ओके। टेक्नोलॉजीज ओके विच आर क्या बोलते हैं suitable to the fields of these farmers, which are cheaper and which are applicable, okay, और cheaper भी हों। so and there are क्या बोलते हैं agencies also set up for the development of small and marginal farmer development agency है, then क्या बोलते हैं small farmers development agency, then marginal farmers and agricultural laborers development agencies, they also promote, I mean क्या बोलते हैं इन लोगों का, these agencies they also help in development or transfer of technology. They are also involved in development of this particular marginalized section of small and group of farmers. So कम्युनिकेशन मेथड एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का एग्जाम्पल्स तुमको देना पड़ेगा कि किस तरह का ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा सूटेबल है। सी इन फार्मर फील्ड स्कूल मेथड अगेन कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट अमंग द फार्मर्स, लीडरशिप डेवलपमेंट अमंग द फार्मर्स, ओके। अगर तुम क्या बोलते हो अदर ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स में तुम देखोगे तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में seeing is believing वाला प्रिंसिपल है। farmers will adopt the technology, okay, if he believes that, if he sees it himself. So all those methods where you are in direct contact with the farmer, those are more suitable methods of training. Then enlist and explain the methods of evaluation of extension programs. So summative evaluation, formative evaluation, okay, these are the two types. एक तो extension तुम्हारा जो प्रोग्राम है जब चल रहा है तभी हम लोग during the program we go for evaluation, then summative evaluation is at the end of it, okay, last पे करते हैं हम लोग। then अलग और evaluation methods देखोगे तो you have personal evaluation, self evaluation एक है, then you have internal evaluation within the organization, external evaluation, some other organization will come and evaluate your organization, कोई और बाहर से आके तुम्हारा organization को evaluate करता है। evaluation can be of different types. then explain mainly summative and
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. देन उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग एजुकेशनल अप्रोच इन एक्सटेंशन एजुकेशन. नाउ एजुकेशनल अप्रोच का मतलब क्या है? नाउ एजुकेशनल अप्रोच is like you go to some area, okay, first before asking people what is their problem and giving a solution, first survey the entire area, what kind of resources the farmers have, okay, what is the condition of the area, रेनफॉल कैसा है, सर्वे लैंड सॉइल किस टाइप का है, मार्जिनाइज लैंड है या फर्टाइल लैंड है, ये पूरा सर्वे करके पूरा रिसोर्सेज क्या क्या है, लेबर अवेलेबल है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये पूरा सर्वे करके डेटा अपने पास रखो. देन बेस्ड ऑन दैट सर्वे कैन ऑल्सो इंक्लूड, तुम फार्मर से भी फीडबैक ले रहे हो कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है. देन आफ्टर सर्वेइंग एंड यू हैव ए इन्वेंट्री, you know what are the things which you have in your inventory and what resources are lacking, वो मालूम चल गया. उसके बाद try to identify the problem of the area. okay, problem जब मालूम चल जाएगा तो then try to find a solution. then solution जब तुम find कर रहे हो तो clearly define the objectives कि क्या क्या तुम achieve करना चाहते हो through these solutions. what are you trying to achieve? then once you clearly define the objectives, then procedure of the solution, then you solve the problem. After that again we have entire process evaluated at the end of it. तो ये educational approach है. This is the educational approach in extension. So blindly you just don't go and ask for ask about their problems and give a random solution. ऐसा नहीं है. Educational approach में क्या है? You clearly have a definite process of solving a problem. first inventory पूरा सर्वे करो, उसके बाद try to find out the problems, then try to give a solution, clearly define the objectives, follow through, last में evaluation. इससे क्या होता है ना, you will clearly know what are the problems of the area, what are the problems of that area, what kind of solutions are available to you within the limited resources, and how did you do it, because at the end you again go for evaluation. ये educational approach है क्योंकि हम लोग step wise जा रहे हैं, right? So first of all अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज ए प्रॉब्लम. ओके, एक प्रॉब्लम है बोल के तुमको आइडेंटिफाई करना है या फिर एक्सेप्ट करना है कि ये प्रॉब्लम है. सो देन यू हैव टू गिव ए सुटेबल सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस विल फॉलो एंड लास्टली इवैल्यूएशन. इससे क्या होता है कि तुमको मालूम चलता है कि तुम्हारे में क्या फ्लॉस थे, क्या गलती की, क्या नहीं किया स्टार्टिंग में, क्या तुम इसको किसी और तरह से कर सकते थे. ये सब इवैल्यूएशन में लास्ट में मालूम चलता है. So that is educational approach. So clearly you can determine your goals, what to achieve, okay, how much you have achieved, वो last में मालूम चल जाएगा तुमको. Step wise you can go and you can see your progress, how you have progressed from first step to last step and what kind of improvements you have brought. क्या कुछ चेंज आया है कि नहीं आया, ये सारी चीजें तुम जान सकते हो by following educational approach to extension. Then coming to economics, so we have again 50 marks here, 4 questions, one was asked for 20 marks and rest of them are for 10 marks. Then ये फार्म एक्ट रिसेंटली हुआ है तो जो 3 एक्ट्स है तुम्हारे उनमें से एक पूछ लिया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला. नाउ वी नो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से ही हमको मालूम है कि इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी है, पहले भी पूछा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. ना इसमें क्या है ना, अर्लियर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो सिविल सूट फॉलो कर सकते हो, बट इसमें क्या है, फार्मर्स को एडवांटेज थोड़ा दिया है, प्रोटेक्शन दिया है. ओके, सो इसमें क्या है, फर्स्ट एग्रीमेंट जो भी तुम करोगे, एग्रीमेंट में यू हैव टू क्लियरली डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या है, कौन सा कमोडिटी खरीदने वाले हो, कितना प्राइस है, वो पहले से ही डिटरमाइन करना है बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप. देन इफ द प्राइस
इज अनस्टेबल, प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है, तो एक फिक्स्ड प्राइस तुमको पहले से ही बताना पड़ेगा कि हम लोग इतने प्राइस में जाएंगे, बाद में तुम चेंज नहीं कर सकते. देन वो प्राइस, हाउ डिड यू अराइव एट दैट प्राइस, दैट द प्रोसीजर ऑफ अराइविंग एट दैट पर्टिकुलर प्राइस कि हम लोग 25 रुपए पर किलो में खरीदेंगे, वो 25 रुपए तुमने कैसे लगाया वो भी बताना है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. ओके, दैट हैज टू बी ऑल्सो गिवन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. देन उसके बाद ड्यूरेशन. सो मिनिमम ड्यूरेशन जो है इट इज फॉर 1 क्रॉप पीरियड, या फिर अगर तुम लाइव स्टॉक होता हो तो 1 साइकिल, 1 प्रोडक्शन साइकिल. नाउ मैक्सिमम पीरियड कैन बी अप टू 5 years, और अगर कोई पेड टेक ऐसा कुछ लगाया है तो उसमें इट कैन गो फॉर 8-9 years, और 1 प्रोडक्शन साइकिल और मैक्सिमम ऑफ 5 years. अगर प्रोडक्शन साइकिल 5 years से ज्यादा आता है तो दैट प्रोडक्शन साइकिल वो 7 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है. अगर वो एक पूरा प्रोडक्शन साइकिल करने के लिए उसको 7 साल लगता है तो द कॉन्ट्रैक्ट में गो बियॉन्ड 5 years ऑल्सो, बट अदरवाइज मैक्सिमम ऑफ 5 years. तो मिनिमम 1 क्रॉप पीरियड और 1 प्रोडक्शन साइकिल और मैक्सिमम ऑफ 5 years. देन सबसे मेन की पॉइंट क्या है यहां पर, रेजोल्यूशन, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है. सो पहले 3 मैकेनिज्म दिया है यहां पर, 3 स्टेप्स में. एक तो कंसिलिएशन बोर्ड एस्टैब्लिश किया है, दूसरा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही विल डिसाइड, लास्ट में यू हैव ए अथॉरिटी वेयर यू कैन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्या मैं नाम भूल गया उसको क्या बोलते हैं, अपीलेट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट बोलो, अपीलेट अथॉरिटी वेयर यू कैन गो एंड अगर कोई ग्रीवियंसेस है, लोअर लेवल पे कोई ग्रीवियंसेस है तो यू कैन गो फॉर अपीलेट अथॉरिटी ऑल्सो. अगर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने तुम्हारे खिलाफ दिया है और तुमको लगता है नाइंसाफी है, यू कैन गो टू अपीलेट अथॉरिटी. तो 3 लेवल्स पे तुमको कंसिलिएशन जो है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो है, दैट इज एस्टैब्लिश्ड. सो एट एवरी स्टेज, अगर ये कंसिलिएशन बोर्ड में जाता है या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाता है या फिर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व करना है इसको. सो कंसिलिएशन बोर्ड, इफ यू गो टू कंसिलिएशन बोर्ड तो पूरा प्रोसीजर एवरीथिंग शुड बी ऑलरेडी इन द कॉन्ट्रैक्ट. कंसिलिएशन बोर्ड में कौन कौन होगा, देयर शुड बी अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट. देन अगर कंसिलिएशन बोर्ड से तुम उसका जो अगर एग्रीमेंट नहीं होता है, then you can go to sub divisional magistrate, he will try to resolve it. If you are not happy with his decision or if he is not able to resolve, it will go to appellate authority. हर जगह पर मैक्सिमम 30 डेज के अंदर डिसीजन देना है. अगर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है, आज के दिन गया तो आज से 30 डेज के अंदर अंदर इट शुड बी रिजॉल्व. एंड इन नो केस इफ देर इज ए डिस्प्यूट, और अगर कोई ड्यूस है, फार्मर को पैसा दे, आई मीन फार्मर उधार पे है, फार्मर हैज टू पे द कंपनी, फार्मर को पे करना है कंपनी को. अगर ऐसा कोई पैसा है तो कंपनी कैन नॉट मॉर्टगेज द लैंड. वो लैंड के ऊपर अगर जैसे अगर फार्मर कंपनी को, फार्मर हैज टू पे टू द कंपनी, बट फार्मर अगर एलिजिबल, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ पे नहीं कर सकता, तो कंपनी उसका लैंड नहीं ले सकती, या लैंड मॉर्टगेज करके या फिर लैंड किसी को लैंड बेच के पैसा दो हमको, ऐसा नहीं बोल सकता है. हिज लैंड कैन नॉट बी टच्ड. सो ये जो एक्ट है इट इज इन फेवर ऑफ द फार्मर. इवन इफ फार्मर इज इन द डेट टू द कंपनी, कंपनी कैन नॉट टच हिज लैंड. सो एक तरह से ये फार्मर के फेवर में ये है. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर स्पेशली बिकॉज दे हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ज्यादा उनके पास इनकम नहीं होता है, इवन इफ दे हैव डेट टू द कंपनी, उनका लैंड को टच नहीं कर सकते. तो एक तरह से उनके फेवर में है. ओके, फार्मर के फेवर में है. अर्लियर क्या होता था ना, इफ देर इज ए डिस्प्यूट, सिविल सूट डाल सकते थे, एंड द सिविल सूट में गो ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बड़ी कंपनीज को तो, जो तुम्हारा प्राइवेट कंपनीज के बड़ी कंपनीज है, उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्मॉल फार्मर ही हैज टू स्ट्रगल, क्योंकि लॉ सूट है तो ही हैज टू गो टू एक लॉयर को लेना पड़ेगा, ये सारा उनका सरदर्द है. बट दिस हैज मेड, वो जो अगर कोई डिस्प्यूट है तो बहुत जल्दी कंसिलिएशन बोर्ड जो भी है सर, जल्दी जल्दी होगा प्रोसेस, क्योंकि 30 डेज है मैक्सिमम एट एनी वन स्टेज, एंड दैट टू थिंग्स आर इन फेवर ऑफ फार्मर अंडर द एक्ट. देन एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया. 10 मार्क्स का है. सी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सब कुछ इन्वॉल्व होता है, प्रोसेसिंग,
transportation, storage, all the institutions which are involved in packaging, processing, storage, in वो सारा का सारा, all those institutions can be mentioned under marketing agencies. Okay, mainly they are involved in storage, processing, ये सब है, and there are some institutions which also makes rules and regulations. They are also involved in marketing. Regarding marketing rules and regulations अगर बनाते हैं तो price के लिए उसके लिए they are also covered under the marketing institutions. So I will mention few. तुम ये सारे जो है ये इनके नाम लिख सकते हो marketing institutions के नाम. So we have individual level, public level institutions हैं. Then we have cooperative institutions. Then we have labor associations, traders associations, processors associations. उन लेवल पे भी हैं. अगर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस अगर तुम देखते हो तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, देन वी हैव फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, देन वी हैव सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जो स्टोरेज का वो देखते हैं, देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा, APMC एक्ट है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, देन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस. देन कोऑपरेटिव्स भी हैं विच आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NAFED, TRIFED, National Tobacco Growers Federation, then we have Traders Association, Labour. So there are different institutional infrastructure laid at different levels. Cooperatives भी हैं, corporate structure भी है हमारे पास. So वो सब तुम mention कर सकते हो इसमें. Then what is diversified system of farming? How is it beneficial to small and marginal farmers in India? So beneficial इसमें क्या है? Diversified farming में क्या है definition? Where we have different enterprises, okay, and no enterprises crosses 50%, more than 50% income किसी एक enterprise से नहीं आ रहा है. See, diversified farming में क्या है? We take different enterprises like cropping, animal husbandry, poultry, सारा कर रहे हैं, but no single enterprise gives more than 49%. 49% से ज़्यादा कोई भी एक एंटरप्राइज इनकम वो क्या बोलते हैं इनकम नहीं देता है. इफ़ इट क्रॉसेस 49%, 50 या 50% से आगे बहुत होता है तो वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो जाएगा. इट विल बिकम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग. इफ इट इज बिलो 49% एंड ईच एंटरप्राइज शुड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 10%. एटलीस्ट 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना है, बट 50% से नीचे होना चाहिए, 49 से नीचे. It should be below 49 and more than 10. Then it is diversified farming. Diversified farming का main goal क्या है? Especially diversified farming is done by small and marginal landholders because economy of scale नहीं है. Profit maximization is not the goal. Here the main goal is risk minimization in case of crop failure. अगर एक enterprise fail होता है तो बाकी enterprise से घर चलता रहेगा. Okay, subsistence is the main goal. Subsistence and risk minimization is the मेन गोल. एंड कैसे बोला है, दो मेन एडवांटेजेस क्या है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के? अपना घर चलाने के लिए दे विल हैव ऑल काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ है. फैमिली चलाने के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए, बट नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो गोल नहीं है. देन व्हाट इज फार्म बजटिंग एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ, ये तो कॉमन क्वेश्चन है. पार्शियल बजटिंग, कंप्लीट बजटिंग. बजटिंग क्या है? इट इज फार्म प्लानिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट? सो दीज आर कॉमन क्वेश्चंस. बजटिंग तो कॉमन है, बहुत पहले से आ रहा है. सो दैट वाज अबाउट एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स. सी एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स में क्या है ना, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है ये. यू हैव टू क्रैम एवरीथिंग. NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये तुमको क्रैम करना पड़ेगा पॉइंट्स को. यू हैव टू रिमेंबर द सब हेडिंग्स. मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, कॉर्पोरेट कौन से है, कोऑपरेटिव कौन सा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा तुमको वहाँ पर. इट इज बिट ड्राई, बट अगेन यू हैव एटलीस्ट 40 to 50 मार्क्स का वेटेज है, तो यू कैनॉट लीव देम, राइट? सो यू हैव टू cover it anyway. So that was about paper 1. So in the next video we'll start with genetics and plant breeding. In the 5th video we'll start genetics and plant breeding. Okay, so that is all for this video. Thank you very much.